Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So, I'm Mr. PG Bhaviskar. Welcome you in the presentation of Class 10 Mathematics, your chapter Quadratic Equation. In a previous session, we already studied what in by quadratic equation, how to find the solution of quadratic equation by factorization method. Also, we have find how to find the solution by quadratic formula and also discuss the about the nature of the roots. Now just I am going to review it. If you are given the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real number, here any quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, a b c are any real number, okay, then roots are, then your quadratic formula is what? X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So this is a quadratic formula. This formula, using this formula, we will find the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c. तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो हम लोग इस फॉर्मूला से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में ये यहाँ पे जो ये क्या होता है, ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। इफ यू हैव गिवन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, first we will compare given quadratic equation with this standard form of quadratic equation x square plus bx plus c and find out the value of abc and put this value of abc in this formula. We get two values of x because here in this formula there is a sign plus minus. Plus minus means one first time plus second time minus. You can take first time plus then second time minus, then we get two value, and these are the solution of given quadratic equation. Okay, now what is the nature of the roots? Now in this quadratic equation, this value value अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, the value for b square minus 4ac is called discriminant. इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसके ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड करता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट it is generally denoted by letter d, and if this d means b square minus 4ac is greater than 0, यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है, देन वी गेट टू रियल रूट्स, तब हमें दो रियल रूट मिलते हैं। दो रियल रूट का मतलब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस साइन है, एक बार प्लस लेना है, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, या ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला इसी तरह लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो एक बार प्लस ले तो ये एक वैल्यू मिलेगी एक्स की, दूसरा वही साइन हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे मिडिल टर्म को, तो वी गेट माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन वी गेट दिस टू वैल्यूज of these two values are the solution of given quadratic equation when if b square minus 4ac is greater than 0। यदि b square minus 4ac उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, और वो रूट्स होते हैं, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड minus b minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, so 1. Second is if b square minus 4ac is 0, यदि ये b square minus 4ac का वैल्यू 0 है, then roots are equal, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये b square minus 4ac हम लोग यहाँ पे यदि 0 पुट करते हैं, यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac की जगह यदि 0 हम पुट करेंगे यहाँ पे, ओके, तो दिस बिकम व्हाट, माइनस b अपॉन 2a प्लस 0, दैट मीन्स ओनली माइनस b अपॉन 2a, तो वी गेट माइनस b अपॉन 2a। यहाँ पे भी यदि हम लोग इसका वैल्यू 0 पुट करता है तो वी गेट ऑल्सो माइनस बी अपॉन 2a। सो हियर बोथ वैल्यू आर इक्वल एंड इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, सो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a
और x इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस बी अपॉन टू ए। तो दोनों रूट्स या सॉल्यूशन इक्वल होते एंड इक्वल टू इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम होते, इक्वल होते, और वो होते माइनस बी अपॉन टू ए। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी का वैल्यू आप पुट करेंगे तो वी गेट द रूट्स। ओके, नाउ देयरफॉर वी से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus bx, this quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has equal real roots in this case। तब इस केस में क्या होता है, दोनों रूट इक्वल मिलते हैं। ओके, नाउ थर्ड केस इज इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि डिटर्मिनेंट का डी का वैल्यू यदि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यू जो मिलेगी हमें नेगेटिव मिलेगी, देन देयर इज अ नो रियल रूट। तब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको क्या होंगे, नो रियल रूट्स, नो रूट्स आर एग्जिस्ट। whose square is, because whose square is b square minus 4ac, then there is no real root whose square is b square minus 4ac, therefore there are no real roots for the given quadratic equation in this case। तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। डिफरेंट टाइप के रूट्स मिल सकते हैं लेकिन वो आपको हायर स्टडी में उसका स्टडी करना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको क्या डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज रूट और नॉट। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ये डिटरमाइन करता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को रियल रूट्स है या नहीं है। ओके, नाउ दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। कभी कभी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 ओके इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिटरमाइन इट्स डिस्क्रिमिनेंट और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी का फॉर्मूला आपका है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसमें यदि हम लोग एबीसी का वैल्यू, ये दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यदि कंपेयर करते हैं तो हमें एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, और ये एबीसी की वैल्यू हम लोग ये फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में पुट करते तो वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी ये इंपॉर्टेंट थिंग इज a quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 has a two distinct root। two distinct root कब होता है, if b square minus 4ac is greater than 0। कब होता है, यदि b square minus 4ac का वैल्यू greater than 0 यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, then your quadratic equation has two distinct roots। और distinct root क्या है, फॉर्मूला से हमने देखा है। ओके, सेकंड इज इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, देन क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, एंड इक्वल रूट का फॉर्मूला हमने देखा है माइनस बी अपॉन टू ए। दोनों रूट इक्वल होते हैं, एन इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। ओके, एंड नो रियल रूट व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यदि निगेटिव नंबर कोई भी आती है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स या सॉल्यूशन है उसका नेचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखना है कि यदि डी का वैल्यू आपका इफ डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये यदि जीरो है तब क्या होता है, इक्वल रूट होता है, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होते हैं,
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग, डिस्टिंग का मतलब भिन्न, roots are real and distinct, and if d is less than 0 and if negative, then no real root, no real roots, यानी कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कभी कभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए बी सी यानी कि जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू अननोन दी जाएगी और दिया जाएगी कि इस इक्वेशन को रियल एंड इक्वल रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। नाउ वी विल ट्राई एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए उनका रूट्स का नेचर हमें फाइंड आउट करना है पहले। सेकंड, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रूट्स रियल एग्जिस्ट होते हैं देन फाइंड देम, यदि रूट्स रियल एग्जिस्ट होते तो फाइंड करना है, नो रियल है तो फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नो रियल रूट हमें पता नहीं कौन सा है, अभी तक हम नहीं पढ़े क्योंकि वो हायर स्टडी में हमें पढ़ना है। तो ओके, so we have given here a quadratic equation. First equation is your 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. This is your quadratic equation. Okay. Now we can discuss the nature about its roots or its solution. ये जो quadratic equation है उसके रूट के बारे में हम लोग उसका नेचर कैसा होगा ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो रूट्स का नेचर डिस्कस करने के लिए हमें डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करनी होगी और हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोग याद करना है। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर आपका ये ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो हमें यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और ये फार्मूला याद करना होगा। उसमें एबीसी का वैल्यू हम लोग यदि पुट करते हैं तो वी गेट द डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिलने के बाद हमने देखा है, यदि फर्स्ट केस हमने देखिए क्या फर्स्ट केस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होता है, रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या होता है, रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर डिस्टिंग, और वो डिस्टिंग होते हैं। और क्या होते हैं डिस्टिंग, हमने देखा फॉर्मूला है डिस्टिंग होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, या आपका डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन 2a, और वो डिस्टिंग रूट्स ए फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला केस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस हमने देखा है, सेकंड केस है व्हाट इज सेकंड केस, इफ डी इज इक्वल टू 0, यदि डी 0 है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। क्या होता है, रियल एंड इक्वल टू क्या होता है, ईच रूट इज व्हाट माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट सेम होते हैं और वो होते हैं रियल रूट होते हैं, रियल एंड इक्वल, और वो होते हैं माइनस बी अपॉन 2a। तो इसी तरह हम लोग रियल रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड केस हमने देखा है, व्हाट इज योर थर्ड केस, थर्ड केस में इफ d इज लेस देन 0 मींस d का वैल्यू यदि नेगेटिव आता है देन व्हाट, नो रियल रूट्स, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसी को बोल सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं होता है, यानी कि देयर इज नो रियल रूट। तो ओके फ्रेंड्स, सो यूजिंग दिस नॉलेज we will discuss here the nature of the first quadratic equation, 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. Now first of all we compare this given quadratic equation with the standard form of quadratic equation. तो standard form of quadratic equation हमें पता है, what is your standard form of quadratic equation, it is a x square plus bx plus c is equal to 0. okay, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको उसके साथ गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एबीसी फर्स्ट। तो पहले हम लोग एबीसी का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो कंपेयर दिस इक्वेशन। तो कंपेयर करने के बाद वी गेट ए इज व्हाट हियर, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
and in a given equation coefficient of x square is 2, so we get here a is 2. Now b means what? B is your coefficient of x and it is here k, so b is equal to k. And third, c means constant term. In a given equation constant term is c, so we get here abc. Okay, again I will tell you. First, compare this quadratic equation, given quadratic equation 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 with the standard form of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 and obtain the value of a b c. तो कंपेयर करने के बाद हमें a का वैल्यू मिल जाता है 2, b का वैल्यू मिलता है k, c का वैल्यू मिलता है 3, तो हमें abc मिल गई. नाउ वी विल फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें दिया गया है, क्या दिया है? Given quadratic equation have just okay, this is a have equal roots. ये हमने प्रॉब्लम पहले ले लिया. ओके, सॉरी, actually we want to find here your first equation is 2x square. Now here find the nature of the roots. Okay, roots find करना है और यदि exist is find out करना है. तो first compare the given quadratic equation. Your given quadratic equation is what? 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से और एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है. तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलता है is 2, b is a minus 3, c is a 5. We get ABC. Now we will find the value of discriminant, और discriminant का फॉर्मूला है b square minus 4ac. Now put the value of here a b c. So discriminant means d is equal to b square. b आपका क्या है? -3, उसका स्क्वायर, minus 4 into a means 2 into c means 5. Simplify it. -3 square is 9. यहाँ पे 4 into 2 into 5 is equal to 40. And we get d is equal to what? 9 minus 40 is minus 31. Now see here. This value of d is here negative. And negative means less than 0. d का वैल्यू क्या है? Less than 0 है. और हमें पता है, हमने देखा है, यदि वैल्यू ऑफ d less than 0 है, तो therefore given quadratic equation has no real roots. That means real root does not exist. So here the value of d means b square minus 4 is less than 0. Therefore real roots does not exist. So no real roots possible for this quadratic equation 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. तो इसी तरह हम लोग ये जो दिया गया इक्वेशन है उसके रूट्स रियल रूट्स है या नहीं, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे नो रियल रूट है तो रूट फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड. यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट होता है तो फाइंड आउट करना है, और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट है तो नो नीड टू फाइंड अगेन. ओके, नाउ योर सेकंड एग्जांपल. सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0. Okay, so again we can discuss here the nature of this quadratic equation. So first of all, we compare this quadratic equation with the general form of quadratic equation या standard form of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0. After comparing here, we get a means coefficient of x square. See, in a given equation, what is coefficient of x square? 3. So we get a is equal to 3. b is a coefficient of x in a given quadratic equation. What is value of b? It is a minus 4 root 3. So we get b is a minus 4 root 3. c is a constant term. And what is a constant term in a given equation? It is 3. So we get c is a 4. So we get here the value of a, b, c. तो हमें यहाँ पे abc की वैल्यू मिल जाती. Now we want to find the value of discriminant. इसका फॉर्मूला याद करना है, क्या है? b square minus 4ac. Now we want to find it. So discriminant means d is equal to b square. b, what is value of b? b is a minus 4 root 3 उसका स्क्वायर, minus 4 into a means 3 into c means 4. अभी सिंप्लीफाई इट. minus 4 root 3, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इसलिए स्क्वायर बन गया. 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर है 3, यानी कि 16 into 3, दिस प्रोडक्ट इज 48. सो वी गेट minus 4 root 3 का स्क्वायर मिलता है 48.
नाउ 4 इंटू 3 इंटू 4 इसका प्रोडक्ट -48, -48 में से 48 गया, इट बिकम 0. So we get here value of d is 0. So here d means b square minus 4ac is equal to 0. और हमें पता है d का वैल्यू यदि 0 है तो क्या होता है, the roots are exist, roots are real, therefore the real roots are exist, sorry here, roots are exist and roots are equal to each other. और दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ओके, रूट्स आर एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या है, रूट्स आर एग्जिस्ट है, सॉरी, एंड रूट्स आर इक्वल, एंड इक्वल टू इसका फॉर्मूला है, ईच रूट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए. तो ये दोनों रूट इक्वल होते हैं, इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए. सो वी विल फाइंड माइनस बी अपॉन टू ए. तो माइनस एज इट, माइनस बी का वैल्यू -4√3 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 3, माइनस माइनस बिकम हियर प्रोडक्ट प्लस, दिस प्रोडक्ट बिकम प्लस 4√3 अपॉन 3 इंटू 2 इज 6. यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे ये प्लस है, माइनस माइनस बिकम दिस बिकम प्लस, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, 2 3 जा 2 2 जा, सो वी गेट 2√3 अपॉन 3. अगेन दिस √3 कैंसल फ्रॉम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में बच जाएगा आपका √3, सो वी गेट 2 अपॉन √3. सो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड इक्वल टू व्हाट, 2√3. सो देयरफॉर द रूट्स आर 2√3 एंड 2√3, यानी कि बोथ रूट्स आर here equal. So in this way if roots are exist, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट्स यहाँ पे आर एग्जिस्ट एंड रूट्स इक्वल एंड इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन टू ए. ओके, और ये फॉर्मूला से निकालना है. तो इन दिस वे इफ रूट्स आर एग्जिस्ट देन वी विल फाइंड द रूट्स, एंड इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड रूट्स आर, क्या फॉर्मूला है रूट्स का, यदि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर एग्जिस्ट, एंड एग्जिस्ट रूट्स आर इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a. और इसमें a b d की वैल्यू पुट करना है, और एक बार प्लस और माइनस लेके दोनों रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू विल chat with me on my WhatsApp number 9420439784. Okay, now we will see next example. So your next example is easy example and it is most important example. ये बहुत important example है, क्योंकि इस टाइप का example आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए MCQ में आ सकता है, या 2 मार्क्स के लिए भी इसमें एग्जाम्पल आ सकता है. तो ये एग्जाम्पल क्या है, हमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक अननोन नंबर है के, रियल नंबर जो होता है एबीसी, उसमें से कहीं तो भी अननोन नंबर होगा. तो यहाँ पे एक के अननोन नंबर है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, और हमें दिया गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट, सो दैट दे हैव इक्वल रूट. तो इसका मतलब ये जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों, वो दोनों का रूट्स जो है इक्वल है. ओके, रियल है और इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो ये दिया गया इक्वेशन हमें पता है, यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यदि इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है. तो ये की पॉइंट का यूज यहाँ पे हमें करना है. So we know that the equation x square plus bx plus c is equal to 0 has equal root, then its discriminant d is means b square minus 4 is equal to 0. ये की पॉइंट का यूज करके हमें k का वैल्यू निकालना है. So okay, we will find it. So first of all, compare the given quadratic equation. Your given quadratic equation is what? 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, और एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हम लोग ये दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद वी गेट वैल्यू ऑफ ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपका 2, वैल्यू ऑफ बी इज हियर के, वैल्यू ऑफ सी इज 3. एबीसी का वैल्यू आप लोग आसानी से ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी. नाउ हमें दिया गया कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
have equal root. Since given quadratic equation have equal root और इक्वल रूट है तो हमें पता है क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डी का वैल्यू जीरो होता है. सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो. डी जीरो मीन्स उसका फॉर्मूला डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो. और इसमें अभी एबीसी का वैल्यू पुट करना है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए. तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या आपका के, दैट इज के स्क्वायर. तो हमने बी की जगह के पुट किया, उसका स्क्वायर माइनस फोर मीन्स फोर एज इट इंटू ए का वैल्यू आपका टू इंटू सी का वैल्यू थ्री, यानी कि फोर इंटू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू राइट साइड जीरो. नाउ के स्क्वायर एज इट, यहाँ पे फोर इंटू टू इंटू थ्री, दिस प्रोडक्ट इज माइनस 24 इज इक्वल टू राइट साइड जीरो. 24 ट्रांसफर किया तो वी गेट के स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस 24 बिकम प्लस 24, यानी कि ओनली 24. सो वी गेट हियर के स्क्वायर इज इक्वल टू 24. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. अभी एक के इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, हमेशा अंडर रूट जो है प्लस माइनस होता है अंडर रूट ऑफ 24. ये 24 हम लोग ये अंडर प्लस माइनस एज इट अंडर रूट में 24 हम लिख सकते हैं 4 इंटू सिक्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है. तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालना है. सो दिस प्लस माइनस एज इट 4 का स्क्वायर रूट आपका है 2. ये 6 का अंडर रूट निकाल नहीं पाते हम लोग, तो वी कैन राइट अंडर रूट 6 एज इट. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यानी कि के का वैल्यू 2 अंडर रूट 6 और minus 2 under root 6. So these are the two values of possible value of k. So we get here k is equal to plus minus 2 under root 6. Plus minus का मतलब एक बार प्लस लिखना है 2 under root 6, दूसरी बार माइनस 2 under root 6. So these are the values of k. तो it is most important example. इस टाइप का एग्जाम्पल श्योरली बोर्ड एग्जाम में आता है. 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. तो आप लोग ये टाइप के प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व करना है. नाउ वी विल सी मोर एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज योर के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अभी हमें ये जो इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन आपका क्या है, के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. अभी ये जो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, दिखाई देता है आप लोगों को, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड मेक इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि ये जो के एक्स है उससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, के एक्स इंटू एक्स इट बिकम के एक्स स्क्वायर. ओके, के एक्स इंटू माइनस टू, द प्रोडक्ट इज माइनस टू के एक्स and this plus 6 as it is equal to 0. Okay, so we get here kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. अभी ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. So we get a quadratic equation kx square minus 2kx plus 6, करेक्ट है. So हमें ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. अभी ये दिया गया इक्वेशन को इक्वल रूट्स है, इसका मतलब ये इक्वेशन को भी इक्वल रूट्स है. So compare first this quadratic equation with the standard form of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 and obtain the value of a b c. ये आसानी से हम लोग abc का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर करके. a, what is value of a here, a means coefficient of x square और x square का coefficient आपका k, so we get a is equal to k. b is equal to coefficient of x और given equation में coefficient of x है minus 2k, so value of b is minus 2k. c is a constant term and it is here 6, so we get here value of abc. तो हमें यहाँ पे abc की वैल्यू मिल गई है. now we will find the discriminant. पहले हम लोग discriminant फाइंड आउट करेंगे और discriminant का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर, b का वैल्यू आपका क्या है माइनस 2k, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये आपका k इंटू c आपका 6 है, तो माइनस 4 इंटू k इंटू 6 सिंप्लीफाई किया, माइनस 2k स्क्वायर, इट्स स्क्वायर बिकम 4k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इट इज माइनस 24k. तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिलता है माइनस 4k माइनस 24k. ओके, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल गया. अभी हमें दिया गया है कि गिवन इक्वेशन को इक्वल रूट्स है. सिंस गिवन इक्वेशन हैव अ इक्वल रूट एंड इक्वल रूट है मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो. दैट मीन्स डी इज इक्वल टू जीरो या b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो. सो वी गेट हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो.
नाउ पुट हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, और ये क्या आपका -4k माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? देयर इज अ 4k, तो 4k कॉमन निकाला। 4k कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में आपका बच जाता है यहाँ के सेकंड टर्म में -6 इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 4k एंड k माइनस 6 इज 0। इसका मतलब एक तो 4k 0 है, नहीं तो k माइनस 6 0 है। सो हियर आइदर 4k 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 4 ट्रांसफर किया तो 0/4 0 होता है, सो वी गेट k इज इक्वल टू 0, एंड k इज इक्वल टू -6 ट्रांसफर किया, इट बिकम प्लस, सो वी गेट k इज इक्वल टू 6। okay, so we get the value of k is here too. But now if k यदि 0 है, k यदि 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे k 0 पुट किया तो आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म आपका 0 होगा, ये टर्म भी आपका 0 होगा, सो आपका बच जाएगा ओनली 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो k की वैल्यू यदि 0 तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, नहीं रहेगा, दिस बिकम अ ओनली कांस्टेंट टर्म। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगी, सो दैट्स व्हाई k इज नॉट इक्वल टू 0। However, if k is 0, then equation will not have a term x square and x. k यदि 0 है तो x square और x वाला टर्म वहां पे रहेगा ही नहीं। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल रहेगी उसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, 2 नहीं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई k is not equal to 0. So k is equal to only what? 6. So therefore k is equal to 6. If the given quadratic equation are equal root, then k is equal to what? 6. Then value of k is equal to 6 only. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. हमें प्रॉब्लम दिया गया है कि इसी टाइप का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है या नहीं, ये हमें पहले बताना है। यदि पॉसिबल है तो वो उसका लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है? द लेंथ, ऐसा डिजाइन किया गया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ की कंपैरिजन ब्रेथ से की गई है, और उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, वो हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हमें पहले ये सिचुएशन ट्रांसफर करनी होगी मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट है, एंड रूट्स एग्जिस्ट है, दैट मींस सच ए सिचुएशन इज पॉसिबल। एंड इफ डी का वैल्यू यदि नेगेटिव आता है, दैट मींस रूट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सच ए सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। तो ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो इसलिए हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसलिए हम फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रू, ये जो लेंथ है वो ब्रेड का ट्वाइस है, ब्रेड का दुगना है। तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा ब्रेड्थ बाय यूजिंग एनी लेटर x। तो हम लोग ब्रेड्थ मान देते x। सपोज द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रू इज x मीटर, हमने मान लिया। तो लेंथ क्या होगा? लेंथ हमें बोला है इट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड का दुगना है, ब्रेड्थ हमने x मान लिया, तो उसका दुगना यानी कि 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। सो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रू आपका होगा 2x। ओके, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम लोग एरिया ऑफ मैंगो ग्रू, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू निकालेंगे। लेंथ आपका है 2x, हमने निकाला है। लेंथ आपका क्या है? 2x इंटू ब्रेड्थ आपका है 2x इंटू एक्स, एंड 2x इंटू एक्स ये प्रोडक्ट हो गया 2x स्क्वायर। सो वी गेट एरिया ऑफ मैंगो ग्रू इज 2x स्क्वायर, एंड वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1। बट एक्चुअली हमें गिवन क्या दिया है? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ग्रू हमें ऑलरेडी दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 2। नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2। अभी ये इक्वेशन 1 एंड 2 में ये क्या है? दोनों भी एरिया ऑफ मैंगो ग्रू है, एंड लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस टू इक्वेशन वी गेट हियर
This 2x square is equal to 800. So we get 2x square is equal to 800. From these two equation 1 and 2, we get 2x square is equal to 800. Now ये 2 ट्रांसफर किया तो x square is equal to 800 upon 2. So x square is equal to 800 upon 2 means 400. 400 left side में ट्रांसफर किया, it become minus. So we get x square minus 400 is equal to 0. So we get this is your quadratic equation. ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. ओके, अभी ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या नहीं, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है, जो फॉर्म किया है, उसके रूट्स रियल है या नहीं, या रूट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है. इसलिए हमें ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा. सो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए वी हैव टू कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी ये जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, उसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. तो कंपेयर करने के बाद वी गेट वैल्यू ऑफ a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, सो a इज 1. b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x वाला टर्म एब्सेंट है, x वाला टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0. सो वी गेट b इज इक्वल टू 0. एंड c इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या आपके कांस्टेंट टर्म इज योर c इज माइनस 400. वैल्यू ऑफ c इज व्हाट हियर माइनस 400. c का वैल्यू आपका यहाँ पे माइनस 4 है. नाउ वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. इसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac. पुट द वैल्यू, b मीन्स 0 स्क्वायर, minus 4 as it, into a means 1, into c means minus 400. 0 square is 0, and here पे minus into minus it become plus, the product will become plus, and 4 into 1 into 400 it becomes 600. So we get the discriminant here. Value of discriminant is what? Your 1600, 1600. तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है, आपका d का वैल्यू मिल जाता है, d is equal to 1600. Okay, now here this value of d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac d ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है. सो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. सो दैट मीन्स रूट्स आर एग्जिस्ट. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट. सो देयरफॉर इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, यानी कि एग्जिस्ट होता है. एंड हेंस द डिजायर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन. यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिजाइन पॉसिबल है. तो ये हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया. ओके, तो हेंस द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कैन बी पॉसिबल, या कैन बी डिजाइन हम कर सकते हैं. ओके, अभी ये डिजाइन कर सकते हैं तो ये हमें सॉल्व करना होगा. तो हमें इसका अभी ऑलरेडी हमें फाइंड आउट किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंपल है, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है. तो वी कैन ट्रांसफर दिस 400 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. दिस माइनस 400 बिकम ऑन राइट साइड 400. सो वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है प्लस माइनस. एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400? इट इज 20. सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. तो हमें x का वैल्यू क्या मिल जाता है प्लस माइनस 20. सो वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. बट x हमने किस लिए लिया है? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का ब्रेड लिया है, और ब्रेड्थ कभी भी निगेटिव नहीं होती है. सो x इज इक्वल टू x is not equal to minus 20. x is equal to minus 20 is impossible because length never negative or breadth never negative. So x is not equal to minus 20. So x is equal to plus 20, यानी कि only 20. So we get x is equal to 20. However, length cannot be negative. Therefore, breadth of the rectangular groove x that is equal to 20, यानी कि plus 20 मीटर. तो हमें breadth मिल जाता है 20 मीटर, और लेंथ हमारा कितना है ट्वाइस द ब्रेड्थ, यानी कि 2x है. तो 2 into 20 and 2 into 20 means 40 मीटर. सो वी गेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ग्रुप इज 40 मीटर. तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ग्रुप 40 मीटर मिल जाता है. तो इसी तरह
हमें इस टाइप का रेक्टेंगल डिजाइन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो उसका लेंथ होगा 20 मीटर, सॉरी ब्रेड्थ होगा 20 मीटर, लेंथ होगा 40 मीटर. सो इन दिस वे वी विल फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, यानी कि साइड्स. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. सेम टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, पहला क्वेश्चन है. इफ सो यदि है तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, है तो प्रेजेंट एज निकालना है. द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर. दो फ्रेंड्स है, उनका दोनों का एज का जोड़ दिया गया 20 ईयर्स. आगे और दिया है 4 years ago. 4 years ago the product of their ages in year was 48. 4 साल पहले, एगो यानी कि पहले, उनका जो एज था उनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है 48. ओके, उनका दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 48. तो ये पहले हमें डिसाइड करना होगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. पहले हमें अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी हैव टू ट्राई टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें पहला कंडीशन दिया गया कि दोनों का एज का जोड़ जो है, प्रेजेंट एज, उनका जोड़ दिया गया है 20. ये दोनों में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ के एक ही वेरिएबल होगा. दोनों फ्रेंड का एज मानना डिफिकल्ट होगा. यदि मान सकते हैं हम लोग, लेकिन नो नीड. तो हम एक किसी का एज मान लेंगे, और दोनों का जोड़, एज का जोड़ दिया है, उसमें से दूसरा का एज हम उसी के अनुसार निकाल सकते हैं. तो हम एक फ्रेंड का एज मान लेते हैं एक्स. सपोज एज ऑफ द वन फ्रेंड इज एक्स. तो दोनों का एज का जोड़ 20 दिया है, तो दूसरे का एज कितना होगा, वो सब में से एक का एज माइनस करना है. तो देयरफॉर एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20. जो सम दिया था उसमें से एक पहला फ्रेंड का एज एक्स माइनस किया है, यानी कि 20 माइनस एक्स किया. सेकंड फ्रेंड का एज है 20 माइनस एक्स. नाउ 4 year ago, अभी जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका एज एक्स है, तो 4 साल पहले, यानी कि 4 साल से कम हो जाएगा. तो 4 year ago द फर्स्ट फ्रेंड एज कितना होगा, पहले एक्स था तो उसमें से 4 कम किया तो एक्स माइनस 4 year. सेकंड फ्रेंड जो है उसका एज कितना होगा, अभी 20 माइनस एक्स है, उसमें से 4 माइनस कर रहे हैं, 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स. तो सेकंड फ्रेंड जो है उसका एज कितना होगा, 60 माइनस एक्स. 4 साल पहले उसका एज 16 माइनस एक्स था. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है, 4 साल पहले वाला जो पहला फ्रेंड का एज एक्स माइनस 4 है, दूसरे का 16 माइनस एक्स है, इनका दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है 48. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फर्स्ट फ्रेंड का एज एक्स माइनस 4 इंटू सेकंड का 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. तो ये हमें इक्वेशन मिल जाता है, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. नाउ ट्राई टू मेक इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. तो लेफ्ट साइड में ये दोनों ब्रैकेट का हम लोग प्रोडक्ट पहले करेंगे. तो हाउ टू प्रोडक्ट फाइंड इट. सो प्रोडक्ट एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. प्रोडक्ट कर दे, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. एक्स इंटू 16 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स, इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर. अभी माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स, इट बिकम प्लस 4x. राइट साइड 48 एज इट. ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट. दिस माइनस एक्स स्क्वायर एज इट. नाउ दिस 16x और प्लस 4x, इनका जोड़ हो गया प्लस 20x. नाउ अभी ये माइनस 64 आपको ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था, ये 48 इधर ट्रांसफर किया तो इट ऑल्सो बिकम माइनस 48. और इनका जोड़, दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ माइनस होगा, और ये जोड़ आता है 1 माइनस 112. तो ये माइनस 48 इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम्स माइनस 112 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ सी हियर इन दिस इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है, तो जनरली हम लोग फर्स्ट टर्म पॉजिटिव करते हैं. तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट, नॉट ओनली फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई थ्रू आउट, यानी कि ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय -1. एंड यदि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी टर्म का साइन चेंज होता है, तो इसका मतलब सभी का साइन चेंज करना है. सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1, तो इट बिकम, this minus become plus x square, this plus 20x become minus 20x, and this minus 112 become plus 112 is equal to 0. यहाँ पे हमने क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो वी गेट हियर दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सो कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। कंपेयर किया तो वी गेट इज 1, b is coefficient of x, that is here minus 20, c is a constant term, that is 112, so we get is 1, b is minus 20, c is 112. Now we will find discriminant. इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. पुट द वैल्यू, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 20 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये प्रोडक्ट आपका आता है माइनस 448, और ये सब्ट्रैक्शन आपका माइनस 48. So here d is a minus 48. d is minus 48, that means b square minus 4 is यानी कि d is less than 0. ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब लेस देन 0 है, एंड लेस देन 0 है तो क्या होता है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये जो बना हुआ इक्वेशन आपका, उसको रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते, यानी कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट. सो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर दिस सिचुएशन. तो दी गई सिचुएशन के लिए रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, एंड पॉसिबल नहीं है इसका मतलब वो टाइप का जो है रेक्टेंगुलर, ये इस टाइप का जो सिचुएशन है या एज है, ये पॉसिबल ही नहीं, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. सो इसी टाइप का सिचुएशन जो है दिया गया था हमें, कि जिनका दोनों का एज 20 है और 4 साल के बाद जो एज उनका प्रोडक्ट 48 है, इसी टाइप का सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. So, okay friends, in this way, try to solve examples from your books. You can also refer other reference book. If you have any doubt, then you can ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, have a good day. Goodbye.